Once again, I want to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। And indeed, it's a joyful day for all of us as believers. We know the hope for that we live is, the resurrection of Jesus और Christ. ये आज हमारे लिए बहुत ही आनंद भरा दिन है, क्योंकि जो हमारी आशा है वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु में है। As Paul writes to the church in Corinth, he says, since Jesus has defeated the death, so do we will also defeat the death. और जिस प्रकार से पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि जैसे यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, वैसे ही आप और मैं भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। As Christians for so many years, we all know the story of resurrection. और मसीह होने के नाते हम लोग बचपन से ही इस पुनरुत्थान की कहानी को सुनते आए हैं। We read in the 4 Gospels and we clearly know what had happened on that particular day. हम चारों सुसमाचार में इसके बारे में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि उस दिन में क्या हुआ था। And we also know it is an important event in the history of mankind that has totally changed the structure of the world, we could say. और हम जानते हैं कि मानव जाति के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसने मानव जाति के पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया था। Even if people, those who do not believe the resurrection of Jesus Christ, I do believe even those people they also have some impact because of the resurrection of Jesus Christ. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो लोग यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन पर भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हुआ है। It's the beautiful thing that happened to the mankind. और ये बहुत ही सुंदर एक बात थी जो कि मनुष्य जाति के लिए हुई। Man was bound to die, physical death and also a spiritual death. जो मनुष्य था वो तो मृत्यु के लिए ही बना गया था, जो कि एक उसकी शारीरिक मृत्यु थी और एक उसकी आत्मिक मृत्यु थी। But thank God Jesus came and he defeated that death and he has given us a new hope. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने आकर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी और उसने आपको और मुझको एक नई आशा दी। So today I want us all to meditate on this particular question, that is what resurrection has done to me. और आज आप और मैं चाहता हूं कि हम इस बात पे, इस विषय के ऊपर मनन करें कि पुनरुत्थान ने मेरे लिए क्या किया है। I know for a matter that it had happened 2000 years ago. और मैं जानता हूं कि ये जो बात है ये 2000 साल पहले हुई थी। And it's not a story, it's not a legend, it had really happened. I believe in that. और ये कोई कहानी या लोक कथा नहीं है और हम विश्वास करते हैं कि ये वाकई में ही हुआ था। But what does that had to do with me? How does this incident transform my life? That is what we are going to look today. लेकिन ये जो वाक्य है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना जो घटी है, इससे मेरे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस बात को देखेंगे। My dear church, I want to ask you a simple question. और मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ। How did you begin to believe in Jesus Christ? आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कैसे शुरू किया? What all the things that you started to believe when somebody told you about Jesus Christ? जब किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया तो आपने किन बातों के ऊपर विश्वास करना शुरू किया? No, you started to believe the virgin birth of Jesus Christ. हो सकता है कि आप कुंवारी मरियम के द्वारा उसके जन्म के ऊपर विश्वास करते हो। You believed that Jesus lived among us as a man. आप इस बात पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह हमारे बीच में एक मनुष्य के समान जिया। You believed that Jesus had taught us a lot of things, and among that, loving one another is one of the biggest and one of the most important thing that he had taught us. आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमको बहुत सी बातें सिखाई और उनमें से एक दूसरे से प्रेम करना सबसे बड़ी और उत्तम बात You है। also believed that Jesus had done a lot of miracles, turning water into wine, feeding 5,000 people, raising the dead. All these things you do believe. आप इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए जब वो यहाँ पर इस धरती पर था, जैसे कि उसने पानी को दाखरस में बदला, 5,000 लोगों को उसने खाना खिलाया और जो बीमार थे उनको उसने चंगाई दी। You also believe that for your and my sin, he took
the cross and he died on the cross. आप इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि आपके और मेरे पापों की खातिर उसने वो क्रूस को उठा लिया और उस क्रूस पर अपनी जान दे दी। And you also believe that he rose again on the third day. और आप इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि वो मृत्यु से तीसरे दिन जी उठा। You know, like Paul says in Romans chapter 1, for others, for the people, those who are perishing, the news of gospel is like a mad thing. You know, it's a foolish thing for them. जिस प्रकार से पौलुस रोमियो की पुस्तक में कहता है कि जो ये क्रूस की जो कथा है उन लोगों के लिए जो कि नाश होते जाते हैं, ये तो एक मूर्खता है। But praise to God, this resurrection of the Christ Jesus is the strength that we have to live on this earth. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पुनरुत्थान की यही जो कथा है ये हमारे लिए एक सामर्थ का कार्य करता है कि हम इस धरती पर जी सकें। So as a believer, if you do not believe in the resurrection of Jesus Christ, you are not a believer at all. तो एक विश्वासी होने के नाते यदि आप परमेश्वर या यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आप विश्वासी ही नहीं हैं। So I want you all to open your Bibles to 1 Peter chapter 1. तो मैं चाहता हूं कि आप पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय को खोल लें। The verses will come on the screen and I want us all to take a few moments to read verses 3 through 9. और जो वर्सेस है वो हमारे पास स्क्रीन पे आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहली आयत तीसरी आयत से 9वीं आयत तक एक साथ पढ़ेंगे। In whatever languages you have in your Bible, please let's start to read from 3 through 9. हम सब एक साथ मिलकर जो भी आपके पास वर्जन्स हैं उसमें हम सब पढ़ सकते हैं, तीसरी आयत से लेके 9वीं आयत तक। Are we all ready in that particular portion? हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। We are going to read out loud, okay? हाँ, जोर से पढ़ेंगे। Are we all ready? Okay, let's go. Praise to be God, हमारे प्रभु the यीशु Father मसीह of के our Lord परमेश्वर और Jesus. पिता का धन्यवाद हो Great mercy जिसने he यीशु has मसीह के given us मरे new हुओं में से birth in a living जी hope उठने to के the द्वारा resurrection of अपनी Jesus बड़ी दया Christ से हमें from the जीवित dead, आशा के लिए नया and जन्म into दिया, an inheritance अर्थात that एक can never अविनाशी और perish, निर्मल spoil और or अजर fade. मिरास The के लिए inheritance is जो kept तुम्हारे in लिए heaven स्वर्ग for में you, रखी है, who जिनकी through रक्षा faith परमेश्वर and के shielded by सामर्थ्य God's से power विश्वास के until the द्वारा coming of उस the उद्धार के लिए salvation that जो is आने वाले ready to समय be में प्रकट revealed in होने the वाला last है day. की In जाती all है। this you इस कारण greatly तुम मगन rejoice, होते हो, though now यद्यपि for a अवश्य little है कि while अभी कुछ you may दिनों have के लिए had यानी suffered नाना प्रकार के grief in all the परीक्षणों trials. के These कारण have दुख come में to हो, so the और true and ये genuineness इसलिए of है your कि faith, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास greater worth जो आग से than ताए हुए gold, नाशवान सोने which से भी कहीं perishes अधिक even मूल्य though it बहुमूल्य refined है, by fire, यीशु मसीह may के प्रकट result होने पर in praise, प्रशंसा और glory महिमा और and आदर का honor कारण when ठहरे। Jesus Christ is उससे revealed. तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब Love तो him, उस and पर even बिन though you do देखे not भी see him, विश्वास you believe करके in ऐसे him and are आनंदित और filled मगन with होते the हो impress- जो वर्णन से बाहर glorious है joy. और महिमा से भरा Receive हुआ the है end result. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार With प्राप्त soul. करते हो। Amen. Hallelujah. आमीन। हालेलुया। So in वचनों से, from these verses, I wanted to talk to you all about what this resurrection has done to me. तो इन वचनों के द्वारा मैं आपसे ये बातचीत करना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान, यीशु के पुनरुत्थान ने हमारे लिए क्या किया है। Now, my dear church, this letter was written by Apostle Peter. और ये जो पत्री है ये पत्रस ने लिखी हुई है। He is one among the disciples who were in the closer circle of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का एक ऐसा चेला है जो यीशु मसीह के बहुत करीब था। And indeed he had a lot of shortcomings in his life, which we all know. और उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और समस्याएं भी थी, हम सब उसके बारे में जानते But हैं। after the power of Holy Spirit that came upon him, he started to live for the Lord and he started to preach the gospel. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ जब उसके ऊपर उतरी तो उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने लगा और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने And लगा। within few years, we know the early church, the first church in the history, had to face persecution. और कुछ सालों में, पहली शताब्दी में हम जानते हैं जो पहली कलीसिया थी उसके ऊपर सताव हुआ। Because of this persecution, people had to run away to different places just to save themselves. और इस सताव के कारण जो विश्वासी लोग थे उनको अपनी अपनी जगहें छोड़कर अलग अलग जगहों पर भागना पड़ा ताकि वो अपने आप को बचा To सकें। such people, Peter is writing this letter to encourage them and to give them a hope to stand firm in their faith. और इन लोगों को जो अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, पत्रस ये चिट्ठी लिखता है ताकि वो उनको आश्वासन दे सके और उनकी उस आशा को जीवित रख सके ताकि वो अपने विश्वास में बने So रहें। as soon as addressing them in the first two verses, he right away goes into talking about the resurrection of Jesus Christ. और जब वो इस पत्री को शुरू ही करता है तो पहली दो आयतों में वो यीशु के पुनरुत्थान के विषय में बातचीत Because करता my है। dear church, this is the greatest hope
that we all have in our lives. और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा है जो हर एक विश्वासी के लिए So है। what this resurrection has done to me? तो ये पुनरुत्थान जो है उसने मेरे जीवन में क्या किया है? Let's see the first thing. I have received new birth. तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे एक नया जीवन मिला है। So to understand this new birth, we have to think about the birth in general. तो इस नए जीवन के बारे में या इस नए जन्म के बारे में जानने के लिए हमें अपने जीवन या अपने जन्म के बारे में वैसे ही I will सोचना take you चाहिए। through Genesis through all these incidents. और मैं आपको उत्पत्ति में से इन सारी बातों को बताऊंगा। God created all of us in His own image. परमेश्वर ने हम सबको बनाया अपने ही स्वरूप He में। gave us life. उसने हमको जीवन दिया। He gave us a purpose, that is to worship Him, to work in the garden that He has planted for us. उसने हमारे जीवन के लिए एक मकसद दिया ताकि हम उसके लिए कार्य कर सके। जो अदन की वाटिका बनाई थी उसमें हम कार्य कर सके। But because sin entered into mankind, we had to, separated from the presence of God. लेकिन क्योंकि पाप मनुष्य जाति में आ गया, हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो टूट गया और हम अलग कर दिए गए। And there the curse of death also came into action. और वहां पर मृत्यु का जो शाप था वो हमारे जीवन में आ गया। From that generation to generation, human beings came, they lived and they died. और उसके बाद पीढ़ियों से पीढ़ियों तक मनुष्य जाति जो है वो आती है, पैदा होती है और मृत्यु की तरफ Of बढ़ती course, है। they had a physical death, and also they were dead in their spiritual life also. और ये उनकी शारीरिक मृत्यु थी, लेकिन वो आत्मिक रीति से भी मरे हुए थे। Because now no longer they are connected to the Lord. They tried different ways, as we know, through laws, through commandments, through sacrifices, but none could bring them closer to the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर से उनका जो एक रिश्ता है वो टूट चुका था और वो परमेश्वर के करीब आने की कोशिश तो कर रहे थे। हम जानते हैं, वचन हमको बताता है कि वो आज्ञाओं के द्वारा, नियमों के द्वारा और अपने बलियों के द्वारा वो परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते थे, लेकिन जो ये रिश्ता है वो टूटा ही हुआ था। Down through the history we know about God bringing prophets, judges, kings, prophets to bring people closer to Him, but it was just for a particular period of time. It was not that successful in a greater scale. और इतिहास में हम जानते हैं, वचन भी हमको बताता है कि परमेश्वर ने भी अपनी तरफ से बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, राजाओं को भेजा, उसने न्याय करने वालों को भेजा ताकि वो लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ सके, लेकिन ये सब व्यर्थ ही रहा था। Ephesians chapter 2 verse 1 says, "As for you, you were dead in your transgressions and sins." इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Yes, we were dead in our transgressions and we were dead because of our sins. हम अपने पाप और अपने जो परेशानियां थी और हमारे जो पाप थे उसकी वजह से हम मृत्यु को प्राप्त किए हुए थे, मरे हुए थे। This sin had separated us from our Father. और ये जो पाप था इसने हमें अपने पिता से जो दूर कर दिया। And we all know the result of the sin, right? और हम सब जानते हैं कि जो पाप है उसका जो परिणाम है वो क्या है। Can we all say what does Romans chapter 6 verse 23 says? रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 23वीं आयत क्या बताती है? What is the wages of sin? मृत्यु। The result of us doing sin is eternal death. पाप की मजदूरी जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। So God in His eternal love and in His eternal grace sent His own Son Jesus Christ to die for our sins. इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों की खातिर मृत्यु को प्राप्त कर सके। Jesus' arrival, the purpose for Him to come to this earth is very specific, that is to save all of us from our sins. और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद था और वो था हम सबको हमारे पापों से मुक्ति दिलाना। That's why Paul says in 1 Timothy chapter 1 verse 15, he says, "This is a trustworthy saying that deserves full acceptance, that is, Christ Jesus came into the world to save sinners." इसीलिए पौलुस जो है पहला तीमुथियुस उसकी पहले अध्याय की 15वीं आयत में कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। So how did Jesus did this redemptive work for us? तो प्रभु यीशु ने ये उद्धार का कार्य किस प्रकार किया? How did it happen? किस प्रकार से किया? By dying on the cross for our sins. क्रूस पर उस मृत्यु को प्राप्त कर कर हमारे पापों के कारण The redemptive work that Jesus had done on the cross
helped us to save ourselves from the sins. यीशु मसीह ने क्रूस पर जो उद्धार का कार्य किया उसके द्वारा आप और मैं पाप से बचाए जाते हैं। You know, so when we are saved, which means we are getting a new life. और जब हम बचाए जाते हैं इसका मतलब यही है कि हमें एक नया जीवन मिला You है। know, you must have heard people saying about, people those who met in an accident and miraculously, escaped. They would say, this person got a new life. आप इस बारे में जानते होंगे, लोग जब कहते हैं कि जब किसी एक्सीडेंट में किसी की ऑलमोस्ट मृत्यु होने वाली होती है लेकिन वो बच जाता है, तो लोग इस प्रकार कहते हैं कि इसको एक नया जीवन मिला है। That's what exactly happened to us. Indeed, we were dead. We were dead in our sins, but Jesus came and made us alive to be with Him. और वाकई में ये इसी प्रकार से होता है, क्योंकि हम पाप में मरे हुए होते हैं, हम मृतक की दशा में होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमको फिर से जीवित किया। How we were able to get this new life? और ये नया जीवन हमको किस प्रकार से मिला? Romans 10 verse 9 says, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart and that Jesus had raised Him from the dead, you will be saved. रोमियो 10 उसकी 9वीं आयत इस प्रकार से कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु के वो प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। In order for us to be saved, we have to believe in our heart that Jesus has been risen again. हमें अपने मन में ये विश्वास करने की जरूरत है, हमें अपने अंदर आंतरिक रीति से ये विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु आया और वो मरा और वो फिर से जीवित हुआ, इसी के द्वारा हम बचाए जा सकते My हैं। dear church, this is the complete faith that we should have in our lives. और ये हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। Not only that Jesus had done some good works, or he did some miracles. You cannot be saved just by believing on those things. केवल इस बात पर विश्वास करके कि यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए या उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, केवल इस बात पर विश्वास कर हम जो है बचाए नहीं जा सकते। You have to believe in His ultimate sacrifice. You have to believe in your heart that He has risen again. Then only you will be saved. आपको उसका जो पूर्ण बलिदान है उसके ऊपर विश्वास करना है, आपको अपने हृदय में इस बात पर विश्वास करना है कि वो फिर से जी उठा, तभी आप बचाए जा सकते That's हैं। what Peter is telling to these people here. और यहीं पर पतरस जो है लोगों को यही बात को बता रहा In है। fact, he is encouraging those people by saying these words. और वो उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है इन शब्दों के द्वारा। See 1 Peter chapter 1 verse 3. पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 3वीं आयत को देखेंगे। He says, praise to be the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. और यहाँ पर वो इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Hallelujah. Hallelujah. So this new life that we have received has a particular purpose. और ये जो नया जीवन हमको मिला है इसका एक खास मकसद है, That is to live in the living hope that He has given to us by His grace. और वो जो मकसद है वो ये है कि उस जीवित आशा में हमें अपने जीवन को बिताना है जो कि उसने हमें पुनरुत्थान के द्वारा दिया So, है। to simply say, the moment you believe and the moment you are born again, और ये इसको अगर साधारण रीति से कहें कि जिस समय आप नया जन्म को प्राप्त करते हैं और आप विश्वास करना शुरू करते हैं, from that moment you live in a different way. You live with a hope that Jesus has put in your lives. उसी क्षण से आपका जीवन जो है वो बदला हुआ जीवन होना चाहिए। आप एक अलग तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। आप इस आशा में, इस उम्मीद में आप जीते हैं जो कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आपको मिली है। Everything that you do in your life should align with that hope that Jesus has given to you. अपने जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वो उस उम्मीद और उस आशा के साथ जुड़ी होनी चाहिए जो कि यीशु मसीह ने आपको दी है। This living hope was given to us by the eternal grace of our Father and through the resurrection of Jesus Christ. और ये जो जीवित आशा है ये प्रभु के अनंत काल के जो अनुग्रह है उसके द्वारा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आपको और मुझको मिली So है। what does resurrection done to us? तो पुनरुत्थान ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया The है? first thing is it has, I have received a new life. तो पहली बात यह है कि आपको और मुझको एक नया जीवन मिला A है, new birth. एक नया जन्म मिला है। Believing in resurrection
gives you this privilege. यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर यदि हम विश्वास करते हैं तो ये आनंद हमको प्राप्त The होता है। second thing that I have received is an inheritance. और दूसरी चीज जो मुझको मिली है वो है एक विरासत। You know, when you talk about families, and especially, some rich families, they pass on the inheritance to their generations, right? जब आप परिवारों के बारे में बातचीत करते हैं और खास तौर से आप बहुत ही अमीर जो परिवार होते हैं उनके बारे में आप बातचीत करते हैं तो वहाँ के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए विरासत आगे देते हैं। It is the duty of the parents to pass on the wealth that they have hardly, earned to their next generation. और ये माता पिता का एक उत्तरदायित्व होता है कि उन्होंने जो कमाया है, जो धन इकट्ठा किया है, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को आगे देते रहें। So, to understand this, why did we get this inheritance? We have to go back to Galatians chapter 4. और ये जानने के लिए कि हमको ये विरासत क्यों मिली है, हमें गलातियों की पुस्तक में जाना पड़ेगा, उसके 4थे अध्याय में। When we know that when we were dead in our sins, we were enemies to our Father. और हम जानते हैं कि जब हम अपने पाप में मरे हुए थे तो हम पिता के विरोधी थे। We can never reach to Him with the sin that we were carrying in our lives. और जो पाप हम अपने जीवन में करते थे और जो पाप हम उठाकर चलते थे उसके साथ हम कभी भी पिता के पास नहीं आ सकते। But in Galatians chapter 4 we see that through the arrival of Jesus Christ and through the sacrificial death and resurrection of Jesus Christ, we were made to be the sons of God. लेकिन गलातियों की 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के द्वारा और उसके उस बलिदान के द्वारा जो कि उसने क्रूस पर दिया था, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। The moment you believed in Jesus Christ, you are getting a new birth and also you are getting a new relationship with our Father who is in heaven. जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उस समय आपको एक नया जन्म तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको परमेश्वर पिता के साथ एक नया रिश्ता भी मिलता है, आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। Now you have the right to call him as father. और अब आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको पिता कह के बुला सकते हैं। That's why rightfully Jesus, when he was teaching his disciples how to pray, he started the prayer by saying our Father, which means he is indeed our Father. और इसीलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है तो वो सही रीति से उनको बताता है कि पिता को किस प्रकार बुलाना है, हे अब्बा, क्योंकि वो हमारे पिता है। So since we are made to be his children, now we are privileged to have this inheritance in our life, my dear और church. इसीलिए क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी बनाए गए हैं, हमारे पास ये अधिकार है कि वो विरासत जो उसकी है वो हमको मिलती है। Please understand this. You and I have done nothing that could earn this inheritance from our Father. It's because of the grace alone we have received this inheritance. और इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि आपने और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये विरासत हमको मिल सके। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपनी विरासत हमको दी है। And there are some specialities about this inheritance. और ये जो विरासत है इसकी कुछ खासियत भी है। Verse 4 and verse 5 of 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 4th और 5वीं आयत देखिए। Peter says, you guys have received an inheritance that can never perish, spoil or fade. और यहाँ पे पत्रस कहता है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। Hallelujah. हालेलुया। The inheritance that we are receiving, indeed that we have received, will never perish. और जो विरासत हमको मिली है और जो हमको मिल चुकी है वो कभी भी नाश नहीं होगी। It will never depreciate. और वो कभी भी घटेगी नहीं। You know about people keeping money in the locker rooms, right? और आप जानते हैं कि लोग अपना जो पैसा है वो बैंक में लॉकर में रखते हैं। Just by keeping there, because of depreciation, that value is going down. लेकिन वो जो पैसा जो कि लॉकर में भी रखा हुआ है उसकी जो कीमत है वो घटती रहती है। Anything that you see on this earth will perish. That's what the Bible says. इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं वो घटता जाता है या नाश होता जाता है, वचन हमको ये बताता है। And this assurance is very much needed for these people because they saw their houses being burnt. They saw their loved ones being killed. So Peter is saying,
all this inheritance will perish, but the one you have will never perish. और इसीलिए पतरस जब इन लोगों को लिखता है, इनको ये आश्वासन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने अपने घरों को जलते हुए देखा, उन्होंने अपनी जो चीजें हैं, अपनी सामग्री है, उन सबको नष्ट होते हुए देखा। इसीलिए पतरस इनको कहता है कि जो विरासत तुमको मिली है वो तुम्हारी कभी नाश ना होगी। Peter is saying, do not worry, because this inheritance is not here on this earth, it is in heaven. पतरस उनको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विरासत जो है इस धरती पर नहीं है, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। Jesus also, when he was speaking to his disciple, he said, save yourselves treasures in heaven, because where your treasure is, there your heart will be also. और यीशु मसीह भी जब अपने चेलों को सिखाते हैं तो वो उनको यही बात बताते हैं कि अपने लिए स्वर्गीय स्थानों पर धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन भी So my लगेगा। dear church, we have to understand that as we are believing in the resurrection of Jesus Christ, we are receiving an inheritance, but this inheritance is heavenly inheritance. और प्रिय कलीसिया, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जब हम यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें एक विरासत मिलती है, और वो विरासत हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में है। So you could ask your question, Pastor, then what about the life that I live on this earth? तो आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि पास्टर, जो जीवन मैं इस धरती पर जीता हूं उसका क्या? I am facing a lot of difficulties, I am facing a lot of problems. What do I have to comfort myself on this earth? मेरे इस जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और बहुत सी परेशानियां हैं, तो मेरे इस जीवन में आराम के लिए क्या है? When we read in Matthew chapter 6, we know, right? Jesus says, first seek the kingdom of the Lord and its righteousness, and all these things, which is what should we eat, what should we wear, everything will be given to us. हम जानते हैं मत्ती 6 में यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, और ये सारी चीजें जो कि इस धरती की हैं, कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारी चीजें तुझको यूं ही दे दी जाएंगी। Before going further, I want you to remember one thing which is very important. और मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि आप इस बात को याद रखें जो कि बहुत जरूरी है। If you believe in Jesus Christ just for the benefits of this earth, there is no bigger fool than you. यदि आप यीशु मसीह पर केवल इसीलिए विश्वास करते हैं कि आपका इस धरती के ऊपर जो जीवन है वो आरामदायक हो जाए या आसान हो जाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। In 1 Corinthians chapter 15 verse 19, Paul he says, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. और पहला कुरिन्थियों, it's not there, but yeah. Paul is saying, if you just believe in Jesus just to get some material blessings, there is none who can be pitied more than us. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ आर्थिक रीति से आप बेनिफिट या आपको अच्छी चीजें मिले इसीलिए विश्वास करते हैं, तो आपके ऊपर दया करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। So my dear church, God, by believing in the resurrection of Jesus Christ, we have received this inheritance. तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको ये विरासत मिली है। And in order for us to inherit this, inheritance, Jesus had made a way for us. और इस विरासत को ये विरासत को हम पा सके, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला। You must have seen in the movies or read in the stories about kings who had children, right? आपने मूवीज में देखा होगा या आपने कहानियां पढ़ी होंगी जहां पर आप राज्यों के बारे में पढ़ते होंगे, राजा जिनके अपने आगे औलाद होती है या बेटे होते हैं। So the king, when he choose the person, his son who is going to be on throne after him, he also will be protected because his life is also important now. तो जब राजा अपनी विरासत में अपने लिए अगला शासक चुनता है, अपने बच्चे में से किसी एक को चुनता है कि वो मेरे बाद राजा बनेगा, तो वो उसके जीवन की रक्षा भी करता है। Remember, he is not king yet, he is just a prince, but he gets all the protection so that he can live long to inherit the privilege that he has received. आप इस बात को जानिए कि वो अभी राजा नहीं है, वो अभी केवल राजकुमार है, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा, उसके जीवन की रक्षा उतनी ही जरूरी है ताकि वो आगे चलकर इस विरासत को संभाल सके और वो राज्य का जो अधिकार है वो उसको मिल सके। You know what? Jesus is doing exactly that same thing with us. और आप ये बात को जानिए कि यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ इसी प्रकार से कार्य करता है। When we read 1 Peter chapter 1 verse 5, he says, who through faith are children, who means us, we
through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत इस प्रकार कहती है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है. Hallelujah. Hallelujah. Now, how loving our Father is. He has kept us an inheritance for us, and He is also protecting us so that we can, inherit the blessings that He has kept for us in heavenly realms. हमारा पिता कितना प्रेमी है कि वो हमसे प्रेम करता है. उसने हमको एक विरासत दी है और वो हमारी सुरक्षा भी करता है ताकि हम उस विरासत को पा भी सकें. By shielded by His power. हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बचाए जाते हैं या सुरक्षित रखे जाते हैं. And this is through your faith. और ये आपके विश्वास के द्वारा होता है. So when you believe in Jesus Christ, do believe that He is protecting your soul. और जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो इस बात के ऊपर भी विश्वास कीजिए कि वो आपकी आत्मा को He is बचा रहा है. protecting you so that you can inherit the blessings that He has kept for you. वो आपकी रक्षा करता है ताकि आप उस विरासत को पा सके, उस आशीषों को पा सके जो उसने आपके लिए रखी My है. dear church, after all, now we are His children. और इसके बावजूद भी हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए वो हमारे लिए वो विरासत है. You love your child so much that you will never let any harm happen to your child, right? आप अपने बच्चे से उस रीति से प्यार करते हैं कि आप उसके ऊपर कोई भी हानि नहीं आने देते हैं. And how much more our heavenly Father will do for us. तो उससे कितना बढ़ चढ़कर हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो आपके लिए और मेरे लिए So करेगा. what has resurrection done to me? तो पुनरुत्थान ने मेरे लिए क्या किया है? What is the first thing that we saw? पहली चीज क्या है? We have got a new life. हमें एक नया जन्म, एक नया जीवन मिला है. And the second thing is I have received an inheritance. और दूसरी बात यह है कि मुझे एक विरासत मिली है. Third thing that we can see is I can face all trials. और तीसरी बात यह है कि मैं हर प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजर सकता You हूं. must be thinking अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अब क्या ट्रायल्स की बात कर रहे हैं? और आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो सब ठीक चल रहा था और अब आप ट्रायल्स की बात कर रहे हैं. It is reality, my dear church. और ये सच्चाई है. When you see verse 6 of chapter 1 of 1 Peter, और पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय की 6ठी आयत को यदि हम देखें, Peter is saying, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो. I want you to give your attention to the word that Peter uses here, which is greatly rejoice. और मैं आपको आपका ध्यान पत्रस के उस शब्द की ओर लेके जाना चाहता हूं जो कि कहता है कि आप आनंदित होते हो. Greatly rejoice. आप बहुत बड़े तरीके से आप आनंदित होते हो. When they are greatly rejoicing, और आप इस प्रकार के आनंद से कब भर जाते हो? even though when they were going through such trials. यद्यपि उस समय में भी जब वो परीक्षाओं में से होकर जा रहे थे. And this trial is not a small thing, my dear church. और ये जो परीक्षाएं हैं ये कोई छोटी बात नहीं थी. Physical abuse. और इसमें उनको शारीरिक रूप से उनके ऊपर ताड़ना होती थी. Mentally abusing those people. मानसिक रीति से उनके ऊपर ताड़नाएं और परीक्षाएं होती Putting थी. all type of unwanted and false accusations against them. उनके ऊपर हर प्रकार के झूठे और गलत प्रकार के उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे. He's saying, even though you go through all these things, you still greatly rejoice because you know that you have got a new life, a new birth, and you have a great inheritance waiting for you. और पौलुस उनको इस प्रकार से कहता है कि आप इस प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होके जाते हैं, फिर भी तुम आनंदित रहो क्योंकि तुमको एक नया जीवन मिला है, एक नई विरासत मिली है. Now after that he says, though now for a little while. और वो कहता है हालांकि अब कुछ समय के लिए. When we compare our life to eternity, when we think our life as eternity, what we live on this earth is nothing, my dear church. जब हम अपने इस सांसारिक जीवन को अनंत काल के जीवन के साथ तुलना करते हैं तो हमारा जीवन इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं है. We are going to live with our Father forever and ever. There is no end. That's what we believe. और हम अपने पिता के साथ सदैव के लिए, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे. उस चीज का, उस समय का कोई अंत नहीं होगा. But on this earth we have a particular time frame. लेकिन इस धरती के ऊपर हमारा जो समय है वो निश्चित काल का So है. that's why Peter is saying, though now for a little while
you go through all these things, but compare that with the eternity, you will be rejoicing. और इसीलिए पौलुस कहता है कि हालांकि अभी इस समय में आप परीक्षाओं में से होके जाते हैं, लेकिन उसकी तुलना उस अनंत काल के जीवन से करिए और आपको ये जो परीक्षाएं हैं वो कुछ भी नहीं लगेंगी। That's why having faith on the resurrection of Jesus Christ is very important, because that helps us to have this mindset. और इसीलिए यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस विश्वास से हमारे को ये इस प्रकार का दृष्टिकोण मिलता है। Otherwise you must be thinking, I just got 80 years to live. I want to have the best life. I want to have the best thing for me. You will running behind that, thing which is not temporary. लेकिन आप ये ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचे कि मेरा जीवन काल जो है वो केवल 80 वर्ष का है, तो इसीलिए मैं अपने लिए एक अच्छा जीवन बना लूं, एक अच्छी सहूलियत मैं अपने लिए ले लूं, और आप उन सब चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो कि इस संसार में नाशवान। But when you believe in the resurrection of Jesus Christ, you know that one day you will also be resurrected and you have an eternal life waiting लेकिन for जब आप you. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, आप इस आशा में जीते हैं कि एक दिन आप भी उसके साथ जिलाए जाओगे और आपके लिए अनंत काल का जीवन होगा। The first century Christians had gone through physical abuse, physical persecution. जो पहली शताब्दी के जो मसीह लोग थे, उनके ऊपर जो शारीरिक रीति से उनके ऊपर ताड़नाएं होती थी। Even today there are many places and many people, for the sake of gospel, they are also going through this physical persecution. और आज भी संसार भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुसमाचार की खातिर इस प्रकार सताए जाते हैं। But sometimes this persecution will not be physical, it will be psychological, mental, financial. In different ways you could be persecuted for the sake of your gospel. लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि ये जो सताव है ये शारीरिक रीति से नहीं होता है, लेकिन मानसिक रीति से उनके ऊपर होता है, उनके आर्थिक रीति से होता है, और उनके ऊपर इस प्रकार का सताव उनके जीवन में बहुत ही कष्टदायक होता है। And also Peter is encouraging them by giving them a new perspective to look about persecution. और इसीलिए जो पत्रस है वो उनको प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी जो परीक्षाएं हैं, अपनी जो सिचुएशन है, उसको एक नए दृष्टिकोण से देखने पाए। See verse 7, he is saying, these have come so that, this has come means the persecution had come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory and honor when Jesus is revealed. और इसीलिए पत्रस 7वीं आयत में कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। We have so many sisters here. You know about the quality of the gold, right? यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं, वो जानती हैं कि जो सोने का मूल्य जो है वो कितना है। And you must have seen how the goldsmith makes that gold into a pure gold. और आप जानते होंगे कि जो सुनहार है वो किस प्रकार उस सोने को एक पवित्र रूप में और एक प्योर सोने के रूप में लेके आता है। He puts that into fire and the furnace is so fierce that the gold will melt and become as liquid. और वो उसको आग में उस भट्टी में डाल देता है जहां पर आग बहुत ज्यादा धधकती है, और उसके द्वारा जो सोना है वो पिघल जाता है और उसको वो फिर पवित्र रूप में लेके आता है। Once this gold has gone through, it is multiple times it would be done. The more they do, the more pure it will become. और ये जो कार्य है ये बार बार किया जाता है ताकि उस सोने की शुद्धता जो है वो बढ़ती जाए। As it goes up in its purity, it increases in its value also. और जैसे जैसे उसमें वो शुद्धता बढ़ती जाती है, उसका मूल्य जो है वो भी बढ़ता जाता Now है। Peter is comparing this gold and he is saying, though this perishable gold has this kind of value, think about your faith that is being tested now. और इसीलिए पत्रस उनको बता रहा है कि ये जो नाश होने वाला सोना है उसका जो मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है, तो अपने उस विश्वास के बारे में सोचिए जो कि नाश नहीं होता है। When we go through these trials, my dear church, we are being tested
genuineness of our faith. और जब हम इन परीक्षाओं और इन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं तो हमारे विश्वास की जो असलियत है उसकी परख की जाती है। We have to understand this. God is refining us. No, He is redefining us. He is removing the impurities from us so that we will be an acceptable sacrifice in front of Him. और हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमारे जीवन को शुद्ध करता है। इन परीक्षाओं के द्वारा वो हमारे जीवन को और शुद्ध और पवित्र बनाता है ताकि हम उसके लिए एक भाने योग्य बलिदान बन सकें। Whenever we go and purchase something, we always make sure that you purchase the original or the genuine product, right? जब भी हम मार्केट में जाके कोई सामान खरीदते हैं तो हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो सामान जो है वो असली होना चाहिए, नकली तो नहीं है। Because the genuine product will last longer. क्योंकि जो असली सामान है वो ज्यादा समय तक टिका रहेगा। It will withstand all the pressure or anything that is upon it. It will hold on to it. और वो सारा जो कष्ट है और जो प्रेशर है और जो भी उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है उस सबको वो सहने योग्य होता है। That's how God is looking at our faith also. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे विश्वास को भी देखता है। How is our faith today? आज हमारा विश्वास किस प्रकार का है? If God has a, let's say, faith-o-meter, when He comes and put that in front of us, and if He is checking our faith, will the result be a genuine or a counterfeit one? जब परमेश्वर यदि आपके और मेरे विश्वास को एक फेथ मीटर के द्वारा टेस्ट करता है और वो हमारे सामने उसको रखता है तो क्या हमारा विश्वास उस समय असली लगेगा या नकली लगेगा? My dear church, so when you are growing in the Lord, if you have to go through these trials, receive it joyfully because God is purifying you, purifying your faith. इसीलिए प्रिय कलीसिया की जब आप अपने विश्वास में बढ़ते हैं और आपके ऊपर इस प्रकार की ताड़नाएं और परीक्षाएं आती हैं तो उस समय आप आनंदित रहिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको शुद्ध और पवित्र कर रहा है। Anil Kant, he sang a very beautiful song which says, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। और भाई अनिल कांत का एक बहुत सुंदर गीत है, आप सब जानते होंगे, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। So now you must be thinking, okay, I am ready to face all the trials, I am ready to face all the temptations. और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी परीक्षाओं को और इन सारे जो कष्ट हैं इनको सहने के लिए तैयार हूं। Let me remind you, my dear church, you by your own strength can never overcome the trials. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन परीक्षाओं के ऊपर कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। If you turn your attention to Romans chapter 8, where Paul is talking about the redemptive work that Jesus has done. और रोमियो के 8वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विषय में बातचीत कर रहा है। So he says there is no condemnation for those who believe in Christ Jesus. और वो कहता है कि उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं निंदा या उनके ऊपर ताड़ना नहीं है। There is no judgment for us because we believe in Christ Jesus. और उनके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं की जाएगी क्योंकि वो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं and walk according to His will. और वो यीशु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं। But you will go through trials and persecution so that your faith will be tested. लेकिन आपके जीवन में आपके ऊपर सताव और परीक्षाएं आएंगी ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जा सके। After explaining everything towards the end of Romans chapter 8 in verse 37 he says, in all these things we are more than conquerors through him who loves us. Amen. और रोमियो उसके 8वें अध्याय की 37वीं आयत में वो कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Hallelujah. Hallelujah. God loves us and He let us go through these persecutions or trials. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमको हमारे जीवन में इन परेशानियों इन परीक्षाओं में से होकर जाने देता है। And He is the only one who is also helping us to overcome. He is the one who is helping us to be the conquerors over everything that we go through. और वो ही हमारी मदद करता है कि हम इन परीक्षाओं में विजेताओं से भी बढ़कर निकलें। And what is the result of us going through these trials? और इन सारी परीक्षाओं में से होकर जाने का परिणाम हमारे लिए क्या है? When we read the last part of verse 7, और इसमें जो 7वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा हम पढ़ते हैं, First Peter, we are in First Peter chapter 1 verse 7, the last part of it. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत और उसका आखिरी हिस्सा।
You know, it says, when we go through this and when our faith is being tested, it says, then it may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. और वो इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। When we go through these trials, my dear church, the name of the Lord is glorified. और जब हम इन परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो महिमा You पाता know, है। that's what exactly Peter tells, advises to these people, particularly these people, those who are going through persecution. और पतरस इन लोगों से जो सताव में से होकर जा रहे हैं उनको इसी बात का आश्वासन You देता know, he है। says, though they accuse you of things that you have not done, be faithful so that they will praise God on the day of visitation. और वो इस प्रकार से उनको कहता है कि यद्यपि तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं फिर भी तुम विश्वास योग्य ठहरो ताकि वो प्रभु यीशु की प्रशंसा और महिमा कर So सके। what has resurrection done to me? तो इसीलिए पुनरुत्थान ने मेरे लिए क्या किया है? It has given me the strength to face all the trials. उसने मुझको उस सामर्थ्य भर दिया है ताकि मैं इन परीक्षाओं और कठिनाइयों में से होकर गुजर सकूं। And what will be the end result of me overcoming these trials? और मैं इन सारी परीक्षाओं के ऊपर जब मैं विजय प्राप्त कर लेता हूं तो उसका परिणाम क्या होगा? Jesus is being praised. प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती The है glory reaches to him. और जो हमारा जो आदर और सम्मान है वो उसके पास पहुंचता है। Hallelujah. हालेलुया। The last thing, what this resurrection has done to me. और आखिरी बात जो कि इस पुनरुत्थान के विषय में हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। I am joyful. मैं आनंद से भरा हूं। You know, verse 8, 1 Peter chapter 1, verse 8. और जो पहला पत्र उसका पहला अध्याय 8वीं आयत हम You देखेंगे। know, Paul again going back to Jesus here. Peter, he's going back to Jesus again. और पतरस यहाँ पर फिर से यीशु मसीह के पास जाता He's है। saying, though you have not seen him, which means though you have not seen Jesus Christ. और यहाँ पर वो इस प्रकार कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। Yeah, you know, without seeing him, you loved him. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible glorious joy. और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ How है। many of you saw the resurrection of Jesus Christ? हम में से कितनों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा है? Did Mary call you? क्या मरियम ने आपको बुलाया था? None of us were alive that time, right? हम में से कोई भी उस समय में जीवित नहीं था। Peter, when he is writing, even in that first century itself, he is saying, brothers, those who were, from Jewish tradition, those who came to Christ, he is telling to them, you also have not seen Jesus Christ raised from the dead. और पतरस जो है उस समय जो पहली शताब्दी के जो यहूदी लोग हैं उनको वो इस प्रकार कह रहा है कि आपने भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं देखा है। But they had a great joy. लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा आनंद था। Here I want to pause and take your attention to the apostle Thomas. और मैं यहाँ पर कुछ क्षण रुककर आपका ध्यान जो है वो थॉमस के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। In John chapter 20 we read about this. और यूहन्ना 20 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। When Jesus came and he appeared before all the disciples, he was not there. और जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास पुनर्जीवित होकर अपने चेलों के पास आते हैं तो थोमा उनके साथ नहीं था। God knows what he was doing. और हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर था या क्या कर रहा था। And when he came back, all the disciples came and told him, what, we saw Jesus Christ. He came and we saw him face to face. और सब चेलों ने जब थोमा आया तो उसको बोला कि हमने यीशु मसीह को देखा, वो हमारे बीच में आया, हम उसको रूबरू हुए, हमने उससे बातचीत करी। Thomas said, I will not believe. थॉमस ने इस प्रकार से कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। Maybe he had been pranked many times by the disciples, I guess. और हो सकता है जो चेले लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हो और थोमा का बहुत मजाक उड़ाया हो। Thomas said, I will not believe until I see him by my eyes and I touch his wounds by my hands. तो थोमा ने इस प्रकार कहा कि मैं इस बात को तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से उसको नहीं देख लेता और अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से उसके घावों को मैं नहीं छू लेता। And after 1 week, Jesus came back and he appeared to his disciples again. और एक सप्ताह के बाद यीशु मसीह फिर से अपने चेलों के पास आए। This time Thomas was also there. और इस समय थोमा उनके साथ था। And he said, my Lord, my God. और उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु।
And Jesus said, because you have seen me, you have believed. और यीशु ने उससे कहा कि क्योंकि तुमने मुझको देखा है इसीलिए विश्वास करते हो। But blessed are those who have not seen and yet have believed. लेकिन धन्य है वे जिसने नहीं देखा है परंतु फिर भी विश्वास करते हैं। I am sure Peter was sitting nearby and he's hearing Jesus saying all these things. और मैं विश्वास करता हूं कि पतरस उस समय यीशु के पास ही बैठा होगा और वो इन बातों को सुनता होगा। And that's why he's encouraging the people here by saying, though you have not seen him, you are filled with joy by believing in his resurrection. और इसीलिए पतरस यहाँ पर लोगों को पहली शताब्दी में प्रोत्साहित करता है कि यद्यपि तुमने उसके पुनरुत्थान को नहीं देखा है फिर भी तुम उस आनंद से भरे हो क्योंकि उस पर विश्वास करते हो। All of us are filled with joy today as we are sitting in God's presence. हम में से हर एक जन यहाँ पर आज आनंद से भरा हुआ है जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। Because we believe that Jesus is risen again. क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा से जी And उठे the हैं। joy that we have cannot be expressed. और जो हमारा जो आनंद है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते And हैं। it is a glorious joy. और ये जो है ये बहुत महिमामय आनंद है। My dear church, see how great impact the resurrection of Jesus Christ had done, in our lives. और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन पे यीशु मसीह के पुनरुत्थान का कितना बड़ा प्रभाव है। Once we were hopeless, और एक बारी हम आशा रहित थे but now we are filled with hope. लेकिन अब हम में आशा है। Once we were filled with sorrows, एक बारी हम उदासी में थे but now we are filled with joy that cannot be expressed. और लेकिन अब हम उस आनंद से भर गए हैं जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। Praise God for the resurrection on which we believe. परमेश्वर की महिमा हो उस पुनरुत्थान के ऊपर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। After that in verse 9, Peter he's saying, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. और 9वीं आयत में पतरस कहता है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Hallelujah. हालेलुया। By believing in Jesus Christ, your souls are being saved. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारी आत्माएं बचाई जाती हैं। You are being saved by the faith that you professed upon the death and resurrection of Jesus Christ. आप इस बात से बचाए जाते हैं कि आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं इस बात से कि यीशु मसीह की मृत्यु और उस पुनरुत्थान को आप जानते हैं। No amount of good work can never save you, my dear church. किसी प्रकार के अच्छे काम जो आप करते हैं वो आपको नहीं बचा सकते हैं। This end result of our faith is so glorious. हमारे जो विश्वास का जो अंत का परिणाम है कितना महिमामय है। Just imagine you standing in front of the throne of our God. आप इस बात को सोचिए कि आप परमेश्वर में स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने And हैं। he is calling you and he is telling you, well done, my faithful servant, enter into my joy. और वो आपको बुलाता है और कहता है कि बहुत अच्छा किया, तुम विश्वास योग्य ठहरे, आओ और मेरे अनंत शांति में प्रवेश करो। That joy can never be explained in words. और वो जो आनंद है उसको हम कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर So सकते। what has resurrection done to me? तो इसीलिए पुनरुत्थान ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है? It has given me a new birth. उसने मेरे को एक नया जन्म दिया है। It has given me an inheritance that will never perish. उसने मेरे को एक विरासत दी है जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। It has given me strength to face all trials and temptations. उसने मेरे को एक सामर्थ्य दी है कि मैं अपनी सारी कठिनाइयां और परीक्षाओं में से होकर गुजर सकता It हूं। has filled me with joy here on this earth and also in eternity. और उसने मेरे को एक अपार आनंद से भर दिया है यहाँ पर इस धरती पर और उस स्वर्ग में भी। Let's all stand in God's presence, my dear church. आइए हम सब खड़े हो जाएं। As we prepare our hearts to